Welcome dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, in previous classes we have discussed the different pharmacotherapy of diseases, microbial diseases such as tuberculosis, viral infection, fungus infection, and parallelly we have a little bit introspection about the different antimicrobial agents and their pharmacology. Now, we are moving to the specific pharmacotherapy of some particular diseases like UTI. So, in today's lecture we are going to explore the different medicinal properties, or you can say pharmacological agents, which can be used for the treatment of urinary tract infection. So, UTI, or in large you can say it is known as urinary tract infection. So, let us start with the general introduction of the UTI. So, UTI is one of the most common phenomena you can say, which is found in the females, specifically females. It is seen in the males who have the age more than 65 years, and they have very prone to the prostatitis basically. Okay. So, in a survey we found that nearly 10 to 12 million people are reporting per year reporting the UTI. Okay. So, it is a very common disorder. It is nothing, it is the you can say the inflammation of the different urinary parts. Okay. So, generally what happens, the bladder, or you can say the mucosal part of the bladder is having a tendency or the property to resist the microbial infection. Okay. It prevents the microbial infection, but once the you can say in certain conditions when the load or the microbial load was very high, so that infection was moved to the urinary parts, especially the lower urinary part like urinary bladder or urethra, okay, and that will infect that respective part named as you can say urethritis or cystitis, or depending on the kidney, if kidney is involved, it is known as what, pyelonephritis. Okay. So, females are the more susceptible organism for the UTI, and around 50% of the patients have a predisposing cause of the UTI. So, you can say that UTI is a very common disease, बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिकरेंट, है ना. ये अगर एक बार हुआ तो साल भर के अंदर मे बी पॉसिबल दैट इट में रीअपियर. ओके. सो रिकरेंट यूटीआई इज द मेजर कंसर्न, बिकॉज यूटीआई का एक बार अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो लेटर ऑन इट विल गेट व्हाट, developing the resistance against certain antimicrobials, and the second phase of that UTI will more tough to cure. ठीक है ना. So, for that we have to take pharmacotherapy or take certain antimicrobial course or regimens जो कि उसको जड़ से ठीक कर दे. Okay. So, UTI may be defined classified on the basis of infection, their duration of infection. If it is in the initial stage, if it is in you can say for the weeks, okay, for 1 week or 2 weeks, then you can say that it is a type of acute infection. But if it is in the type of infection which is lasting more than 3 or 4 weeks, then you can say that it is a chronic infection. Now, UTI, this picture depicts about the different parts involved in the what microbial infection of the UTI, urinary tract. Okay. So, here are the kidneys. If kidneys get involved in the microbial infection, then it is known as pyelonephritis. ठीक है. तो अगर किडनी इन्वॉल्व हुई, it is a type of what, अपर यूटीआई. यहाँ पर और स्पेसिफिक कर देते हैं. यूटीआई जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्यूट के और क्रोनिक के अलावा हम इसको अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई भी कहते हैं. ठीक है ना. तो अपर यूटीआई की जब बात करेंगे तो दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, अपर यूरिनरी पार्ट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, लोअर यूरिनरी पार्ट. ठीक है. तो जब लोअर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, देन व्हाट वी कैन से दैट इट इज अ लोअर यूटीआई. ओके. सो जब किडनी इन्वॉल्व हुआ तो वी कैन से दैट इट इज व्हाट, इट इज द पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलो इज इंडिकेटिंग द kidney, and nephritis is you can say that it involves the infection or fever is there. Okay, because pyrexia थोड़ा बहुत इसमें एक characteristic symptom होता है, तो that's why it is known as what, pyelonephritis. Whereas अगर हमारा
ब्लैडर इन्वॉल्व हुआ दैट इज अ टाइप ऑफ लोअर यूटीआई। अगर ब्लैडर इन्वॉल्व हुआ देन वी कैन से इट इज अ सिस्टाइटिस, ठीक है। और अगर यूरेथ्रा इन्वॉल्व हुआ तो हम कह सकते हैं इट इज यूरेथ्राइटिस, ठीक है। यूरेथ्रा प्लस आइटिस, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ओके। एंड इफ जनरली द प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स, सो you can say if the prostate gland is involved then it is known as what, prostatitis, ठीक है। and this is generally seen in the male who have above 60 years of the age because उनका फिर prostate gland जो है that is you can say उसमें hyperplasia, hypertrophy देखने को मिलता है, ठीक है। so this is the type of UTIs। so देख लेते हैं एक्यूट इन्फेक्शन में हमने इसको फिर दोबारा डिवाइड किया था, लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई। मैंने पहले बता दिया लोअर यूटीआई का मतलब यूरेथ्रा या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर अगर इन्वॉल्व हो रहा है तब उसको हम लोअर यूटीआई कह देंगे। और अगर आपका किडनी इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्वॉल्व हुआ या फिर इंट्रारीनल एब्सेसेस देखने को मिल रहे हैं देन व्हाट यू कैन से दैट इट इज़ व्हाट अपर यूटीआई, ओके। क्रोनिक इन्फेक्शन जो है पुराना वाला ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तो अब यही जो है वो माइग्रेट हो जाएगा ज़्यादा देर तक रहने की वजह से इन द व्हाट, क्रोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे लाइक पॉलीयूरिया, बहुत फ्रिक्वेंट आपको यूरिनेशन होगा, स्पेशली नॉक्चर्नल होगा, ठीक है ना, रात में ज़्यादा आपको मिक्चुरेशन करने का फ्रिक्वेंसी होगी। पैरेलली यू कैन गेट द वेट लॉस, एनीमिया देखने को मिलेगा, कभी कभी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी एंड समटाइम्स दिस हाइपरटेंशन विल एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द किडनी माल फंक्शनिंग, ओके। सो लोअर यूटीआई में मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए। हाँ, अपर यूटीआई में आपको ध्यान रखना है कि जनरली इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं बिकॉज ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। इट इज़ अ यू कैन से रेयर टाइप ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, बहुत कम देखने को मिलता है। बट इफ़ देयर इज अ अपर यूटीआई, इफ किडनी इज इन्वॉल्व, माइक्रोबियल लोड इज वेरी हाई, है ना, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, आपको एक हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा पेन होगा दैट इज नोन एज लॉइन पेन, ठीक है। पैरेलली यू हैव पायरेक्सिया, फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चिल्स लगेंगे, WBC का जो काउंट होगा दैट विल बी सर्टनली एलिवेटेड, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका यूरिन सैंपल लेके हम उसको अगर कल्चर करेंगे तो व्हाट वी विल फाउंड, वी विल चेक दैट द यूरिन कंटेन्स द पस सेल, ठीक है ना। और पस होना इसका मतलब है कि माइक्रोबियल लोड बहुत ज़्यादा है और पस जो है वो उनका क्या है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको आगे चलकर हम बैक्टीरिया भी कह देते हैं, ठीक है ना। एंड ये जो इन्फेक्शन है फिर धीरे धीरे आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैलेगा जिसमें आपको बैक्टीरिया या फिर आपको आगे चलकर सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द इटियोलॉजिकल, व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है। सो जनरली इट इज़ अ डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस, ठीक है। बट द मेजर कंट्रीब्यूशन टू यूटीआई इज बैक्टीरिया, जो मेन पिक्चर का हीरो है वो कौन है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में भी द ग्राम नेगेटिव आर द मोस्ट यू कैन से प्रोमिनेंट विलन ऑफ दिस मूवी, ठीक है। 95% केसेस अगर यूटीआई के देखने को मिलेंगे तो वो किसकी वजह से होंगे, आपके ग्राम नेगेटिव की वजह से, जिसमें मेजर जो केसेस हैं वो ई कोलाई की वजह से देखने को मिलते हैं अराउंड 80%, ठीक है। प्रोटीएज, क्लैबिसेला, एरोबैक्टर और स्यूडोमोनास की वजह से भी आपको कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वी हैव एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस विच हैव अ वेरी गुड टेंडेंसी टू कॉज द यूटीआई, बट ये बहुत कम फ्रिक्वेंसी है, 5%, बस इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो मल्टीपल बैक्टीरियाज या मल्टीपल जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है, ये आगे चलकर फिर इसको डिवाइड कर देते हैं कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक हो जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, अनकॉम्प्लिकेटेड, एक हो गया कॉम्प्लिकेटेड एंड वन इज रिकरेंट, ठीक है। तो अब इन तीनों को भी समझ लो, टॉपिक है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया जिसमें कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ पर, यूरिनरी सेटअप में। बट कॉम्प्लिकेटेड में ये सेटअप जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ ग्रॉस चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस। वेयर एज इन रिकरेंट ना, व्हाट यू विल सी दैट इट विल रीअपियर विद इन 1 ईयर ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। एक बार ठीक हुआ फिर उसके बाद दोबारा से साल भर के अंदर ये रीअपियर हो जाएगा। तो ये जनरल
टॉपिक है जो देखने को समझने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव टू द फार्माकोथेरेपी, व्हाट वी कैन प्लान टू क्योर द यूटीआई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन इन्वॉल्व है, किसकी वजह से आपको ये यूटीआई हुआ है, यानी कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको पहले तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है, आइदर इट इज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और अगर बैक्टीरिया भी है तो कौन सा, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़ा रोल है पीएच का यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरिन का पीएच, क्योंकि माइक्रोब्स को सरवाइव करने के लिए, यूटीआई करने के लिए जो एक ऑप्टिमम पीएच है वो है 6 to 7.5। ठीक है, इतने के बीच में ही वो अपने सारी रामायण कर सकता है। ठीक है, बट अगर आपने 5.5 से नीचे पीएच कर दिया या फिर 7.5 से ऊपर पीएच को ले गए तो फिर माइक्रोबियल ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यानी कि माइक्रोब को ग्रोथ करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, दैट इज नियरली 6 to 7.5। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ कर ली जो कि इस पीएच को या तो एसिडिक साइड में ले जाए या तो फिर बेसिक साइड में ले जाए, तो व्हाट विल हैपन, द इन्फेक्शन विल एरिडिकेटेड। ठीक है, इसके अलावा हमें जो भी रेजिमेन दिया जा रहा है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट रेजिमेन एंड कंप्लीट दैट रेजिमेन, बिकॉज द रिकरेंस इज वेरी कॉमन फिनोमेना ऑफ द यूटीआई। ठीक है, सो इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, यानी आपको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर और कोई पर्टिकुलर डिजीज़ तो नहीं है। अब जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना है, और ये जो ट्रीटमेंट होगा दैट इज नोन एज द एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। व्हाट इज एम्पेरिकल ट्रीटमेंट? दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रीटमेंट विच डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। मतलब जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, वो देखेगा, आपसे बात करेगा, आपसे आपके साइन सिम्टम्स देखेगा, समझेगा, उसके बाद वो आपको मेडिसिन लिख देगा। ठीक है, जिसमें जनरली वो फ्लोरोक्विनोलोन्स या फिर क्लोट्राइमोक्साजोल चला देता है। ठीक है, जो जनरल मेडिसिन चल जाती हैं। ठीक है, बट क्रोनिक केस में हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन डू यू हैव। ठीक है, आइदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम नेगेटिव है तो भी कौन सा ग्राम नेगेटिव, हाँ, आइदर इट इज ई कोलाई, प्रोटीएज और क्लेबिसेला। ठीक है, सो you have to work out on this particular type of chronic treatment. ठीक है, now जो भी ट्रीटमेंट हम करेंगे, जो भी ड्रग चलाएंगे, और उसकी एक एडिक्वेट डोज होगी और उसका एक ड्यूरेशन फिक्स होता है, 7 days, 14 days, 21 days और 6 महीने तक भी ट्रीटमेंट चलता है डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन। ठीक है, नाउ I already mentioned that bacteria needs an optimum pH that is nearly 6 to 7.5. ठीक है, तो आपको इस pH के अंदर नहीं रखना है बैक्टीरिया को, उसको आपको यूरिन के pH को चेंज करना है, आइदर वो या तो 7 से ऊपर चला जाए या तो फिर 5.5 से नीचे आ जाए। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो यू नीड टू आइदर डिक्रीज द pH और इंक्रीज द pH। ठीक है, अगर pH आपने एसिडिक कर दिया या अल्कलाइन कर दिया तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, नाउ फ्लूइड इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होता क्या है, हम कम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही होती है, तो माइक्रोब को वहाँ घर बनाने के लिए अच्छे से जगह मिल जाती है आपके यूरिनरी सेटअप में। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपका जो ब्लैडर है वो टाइमली वॉश आउट होता रहेगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो भी उसके वॉल्स पर या उसके लेयर पे या कहीं भी अगर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। सो यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, आपको फ्रिक्वेंटली पानी जो है वो पीते रहना। दिस इज अ वन टाइप ऑफ सजेशन एंड जनरली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, द UTI. ठीक है, now there is no satisfactory antibacterial drug is available which can treat all the infections. ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि कोई एक ड्रग ऐसी नहीं है जो सारे के सारे इन्फेक्शंस को क्योर कर दे। Now moving towards the classification of drug, what type of drug we can use? So we have bacteriostatics which can stop the growth of bacteria. We have bactericidals, that means it can kill the bacteria, and lastly we have some urinary antiseptics. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताते चलता हूँ, बिकॉज कई बार यूटीआई की फार्माकोथेरेपी में आप देखोगे तो यूटीआई एजेंट के नाम से आपको नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड द यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। ठीक है ना, तो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट। हाँ, दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप यूटीआई एजेंट्स कह दो, एंटी यूटीआई एजेंट्स कह दो या यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स कह दो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक्स हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर द यूटीआई। ठीक है, इनको और कहीं हम चलाते नहीं हैं। हाँ, ओके, सो बैक्टीरियोस्टैटिक्स के एग्जांपल अगर देखें तो वी हैव सल्फोनामाइड्स,
टेट्रासाइक्लिन्स एंड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ओके, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, बाद में। हाँ, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बैक्टीरिसाइडल, वी हैव कोट्राइमोक्साजोल, एम्पिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स जैसे पिपरासिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, एंड वी हैव द थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स आल्सो। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अब ये यहाँ पर मतलब है बैक्टीरियोस्टैटिक, बट इट इज अ स्पेसिफिक मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, यूटीआई, ठीक है। इसके अलावा वी हैव मेथनामिन मैंडलेट एंड नेलिडिक्सिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी यूटीआई के पेशेंट को पेन हल्का हल्का देखने को मिलता है, थोड़ा रेयर होता है, बट अगर सुप्राप्यूबिक पेन हो रहा है तो फॉर दैट वी हैव एनाल्जेसिक विच इज नोन एज फिनोएजोपायरिडीन, ठीक है। तो फिनोएजोपायरिडीन आप ले सकते हैं, बट बी अवेयर बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एजोडाइज और ये आगे चलकर आपको ब्लैडर कैंसर कॉज कर सकता है। तो अगर इसका ट्रीटमेंट आप लेते भी हैं तो इट विल बी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा आप मत जाइए वरना आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द इंडिविजुअल ड्रग्स। सल्फोनामाइड्स की बात करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड बैक्टीरियोस्टैटिक, वी हैव कवर द सल्फोनामाइड्स इन प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, नाउ इट इज़ द ड्रग विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द ई कोलाई इन्फेक्शन। नाउ इट इज़ वेरी इफेक्टिव and have a very good concentration in the urine as well as the what, tissue, okay। and इसके साथ धीरे धीरे एक प्रॉब्लम डेवलप जो होती जा रही है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हो रहा है, या तो इफ्लक्स में सिस्टम से है या फिर कोई अल्टरनेटिव एंजाइमेटिक पाथवे के थ्रू वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर ले रहा है। नाउ दिस इज अ ड्रग विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द यूटीआई एंड इट इज़ अ वेरी बेस्ट ड्रग फॉर द यूटीआई, ठीक है। कोट्राइमोक्साजोल पहले हम पढ़ चुके हैं। कोट्राइमोक्साजोल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमीथोप्रिम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं, ट्राइमीथोप्रिम, ठीक है, और ये है सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमीथोप्रिम इन रेज टू 1:5, ठीक है ना। नाउ दिस इज अ बैक्टीरिसाइडल। हाँ, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को एकदम मार डालेगा, ठीक है। नाउ जनरली इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग टू ट्रीट अदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द यूटीआई। इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इट इज़ यूज्ड यू कैन से फॉर 7 to 10 days, ठीक है। और आपको मतलब कह सकते हो दिन में 2 बार आपको खाना है दवाई, ठीक है, एंड इट विल क्योर द यूटीआई, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो ट्राइमीथोप्रिम जो है, इसकी एक खासियत है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर एक्युमुलेट होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, तो आगे चलकर इसका एक एडवांटेज आपको प्रोस्टाटिस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एम्पिसिलिन की बात करते हैं तो एम्पिसिलिन इज ओरली एंड पेरेंटली स्टेबल एंड हैविंग अ बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी। नाउ इट हैज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टिश्यू लेवल, यानी कि ये ऊपर पाइलोनेफ्राइटिस के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो जनरली ये प्रेग्नेंट वुमेंस में इसका ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटिंग द यूटीआई, ठीक है। द डोज इज़ नियरली 0.5 ग्राम और 500 मिलीग्राम, ठीक है, और इसको 6 घंटे पे आपको 7 to 10 days के लिए चलाना होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द प्रेग्नेंट वुमेंस, ठीक है, स्पेशली हु आर हैविंग द यूटीआई ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। नाउ इसमें अगर कोई पेशेंट है जिसको कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है जी, तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट चॉइस ऑफ द ड्रग, ठीक है जी। चलो पिपरासिलिन की बात करते हैं। नाउ इट इज़ अ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, स्पेशली किसके अगेंस्ट में, स्यूडोमोनास एरुजिनेसा के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है और इसको हम सिर्फ पैरेंटल रूट से यूज़ कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि इट इज़ अ रिजर्व ड्रग, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट गो विद द पिपरासिलिन इन जनरल केसेस, ओके। गो विद द पिपरासिलिन ओनली इफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आर देयर, ठीक है। तो वहाँ पर अगर मॉडरेट इन्फेक्शन है तो यू कैन यूज़ sorry 4 to 8 ग्राम पर डे IV इंजेक्शन। इफ द लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इज देयर, सेप्टिसेमिया हो गया, बैक्टीरियमिया हो गया अगर आपको, ठीक है ना, तो फॉर दैट यू कैन गो 12 to 16 ग्राम पर डे, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी यू कैन से अफेक्टिव फॉर द दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। नाउ अब प्रॉब्लम है कि अगर आपने यूटीआई को इस तरह की कंडीशंस में नहीं ठीक किया तो ये आगे चलकर आपको
क्या कर सकता है, आपके ब्लड में उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पास कर सकता है, क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, किडनी इन्वॉल्व हो रही है, और किडनी कहीं ना कहीं एक फिल्टरिंग बॉडी की तरह काम कर रही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द aminoglycosides, तो वी हैव जेंटामाइसिन एंड अमीकासिन। ओके, ये शायद आपको याद होगा माइक्रोमोनोस्पोरा है, ठीक है ना, माइक्रोमोनोस्पोरा से निकला था, ठीक है। ओके, नाउ दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द ई कोलाई, प्रोटीएज एंड सुडोमोनास। We can use aminoglycoside through the parenteral route, and they have a side effect, major side effect as ototoxicity and the nephrotoxicity, ठीक है। Single dose can reduce the renal toxicity and it is also reserved for the complicated UTI. It means it is also a drug of choice for the reserved condition. अगर आपको complicated UTI है, so you can go with the what, aminoglycosides. Now fluoroquinolones is the ideal agent for the what, UTI. अगर हम बात करें तो कोट्रामेक्साजोल के बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े ही सक्सेसफुल ड्रग रहे यूटीआई में। सो इट इज़ स्पेसिफिकली इफेक्टिव फॉर द नोजोकोमियल पाइलोनेफ्राइटिस। अगर आपको हॉस्पिटल में कहीं पर अगर मान लीजिए पेनाइल कैथराइजेशन हो रहा है, या फिर क्योंकि जनरली यूटीआई इसी तरह से फैलता है, ठीक है, तो अगर आपको नोजोकोमियल पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है या फिर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई देखने को मिला है, तो उस कंडीशन में फ्लोरोक्विनोलोन आर द चॉइस ऑफ ड्रग। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आपको पता ही है, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, लोमिफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन भी एक ड्रग है जो कि हम चला सकते हैं, ठीक है। नाउ दे हैव अ वेरी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन एंड ओरली दे हैव अ वेरी पोटेंशियल रोल अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। नाउ अब इसको हम वहाँ पर भी चला सकते हैं जहाँ पर कौन नहीं काम कर रहा था, बीटा लैक्टेम नहीं काम कर रहे थे, ठीक है जी। तो जहाँ पर बीटा लैक्टेम और अमीनोग्लाइकोसाइड फेल हो रहे हैं वहाँ पर फ्लोरोक्विनोलिन जो है हमारा वो चॉइस ऑफ ड्रग है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको चला सकते हैं। सिफेलोस्पोरिन्स की बात करें तो दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल अगेंस्ट द ई कोलाई एज वेल एज द प्रोटीएज, एंड थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स आर द चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। थोड़े एक्सपेंसिव हैं, थोड़े महंगे हैं, बट अगर आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि बाकी कुछ यूटीआईज काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो यू कैन गो विद द व्हाट, सिफेलोस्पोरिन्स। स्पेशली सेप्टिसेमिया में अगर आपको यूटीआई हुआ है तो इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। सो इन सेप्टिसेमिया यू कैन गो विद द व्हाट, cephalosporins, especially the third generation. Phosphomycin और nitrofurantoin, they are specific drug which are used for the UTI. अगर हम phosphomycin की बात करें तो it is a bactericidal and very effective against the gram positive as well as gram negative bacilli. Now 3 ग्राम ओरल डोज इज अफेक्टिव टू ट्रीट द अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, ठीक है, यानी बस एक सिंगल डोज लेना 3 ग्राम का और आपको यूटीआई से स्पेशली अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई से आपको आराम मिल जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, सो इट इज़ लिटिल बिट बैक्टीरियोस्टैटिक। हाँ, अब नाइट्रोफ्यूरेंटाइन स्पेसिफिकली यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, सो इसका जो यूरिनरी कंसंट्रेशन है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है, यानी यूरिन में इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहेगा और स्पेसिफिकली वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस या टिश्यू में पेनिट्रेशन कम है, तो इसीलिए इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस में नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, थोड़ा सा इसकी एफिकेसी वहाँ पर ससेप्टिबल होगी। बट जनरली जो डोज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 50 to 100 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर क्रोनिक कंडीशन है तो हमको ये ट्रीटमेंट लंबा खींचना पड़ेगा, ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 12 हफ्ते तक जा सकता है ये ट्रीटमेंट, ठीक है। नाउ सिंगल इंडिकेशन ऑफ द नाइट्रोफ्यूरेंटाइन इज ट्रीटमेंट एज वेल एज द लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, यानी आप कह सकते हो इट इज़ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई एज वेल एज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ यूटीआई। अगर आपको कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर यूटीआई क्या है, एक एंडेमिक डिजीज़ हो गई, ठीक है, बहुत लोगों को हो रहा है ना, तो फॉर दैट, क्योंकि देखो अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे ऑफिस के टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोबियल इन्फेक्शन वहीं से स्प्रेड आउट होता है। इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द प्रेगनेंसी, सेफ है तो इसको आप ले जा सकते हो। नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो क्विनोलोन क्लास की ड्रग है, 0.5 ग्राम टैबलेट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे डोज दे सकते हैं, यानी दिन में 4 बार हम इसको दे सकते हैं ट्रीटमेंट को, और एंड द ड्यूरेशन फॉर द ट्रीटमेंट इज मैक्सिमली 7 to 10 days, ओके। बट इट इज़ रिजर्व ड्रग, एफिकेसी इज स्टिल नॉट वेरी गुड, ओके। नाउ ये ड्रग है जो कि यूटीआई में एक अच्छा नाम है, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
मेंडेलिक एसिड एंड मिथामीन, ठीक है। मिथामीन और मेंडेलिक एसिड जो है ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्लास में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिथामीन। मिथामीन जो है ये टूटकर दो चीजें बनाता है, एक बनाता है फॉर्मल्डिहाइड और साथ में अमोनिया गैस निकालता है, ठीक है जी। और मेंडेलिक एसिड जो है उस भाई का क्या काम है, इसकी जिम्मेदारी ये है कि जो यूरिन का पीएच है उसको एसिडिक साइड में रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 5.5 से नीचे जाओगे अगर आप, तो आपको जो इसकी एफिकेसी है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो मेंडेलिक एसिड इज फॉर द डिक्रीजिंग द पीएच, ठीक है। वेयर एज मिथामीन is break down into the what formaldehyde and ammonia, and you people all be aware about that formaldehyde as is a very good antiseptic और antimicrobial कह सकते हो, ठीक है। formaldehyde में मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव सब के सब जो हैं वो मर जाते हैं या फिर ग्रोथ ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो formaldehyde is a main you can say the metabolite which is responsible for the UTI treatment, okay। now इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है जीआईटी से और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। एंड मैंने पहले बता दिया कि ये मिथामीन टूटकर क्या बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड बना देगा और मेंडेलिक एसिड जो है वो उसकी पीएच को कम कर देगा, ठीक है। नाउ डोज की अगर हम बात करें तो 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इसका ड्यूरेशन डिफाइन हो सकता है फ्रॉम वीक टू 14 डेज और फॉर 12 वीक्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि आपको, आप कह सकते हो कि आपको ऑरेंज कलर का यूरिन आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ व्हाट द रिमूवल ऑफ द ड्रग, ठीक है ना, ड्रग आपकी जो रिमूव हो रही है। नाउ दे आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट द एक्यूट इन्फेक्शन एंड स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द क्रोनिक ट्रीटमेंट। समटाइम्स अगर आपने इसका कभी कभी अगर आपने इसका लार्ज डोज यूज़ कर लिया ना तो ये बहुत डेंजरस है, ये आपको म्यूकोसल को डैमेज करने लगता है, ठीक है। अब कैसे चॉइस करेंगे एंटीबैक्टीरियल थेरेपी फॉर द यूटीआई। सो सबसे पहले तो साइट ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, कहाँ पर है, यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट है, सिस्ट मतलब यूरिनरी ब्लैडर है या फिर किडनी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है लाइक डायबिटीज़ और कोई जेनेटिक एनोमलीज तो नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंट तो नहीं है। अगर नहीं है मतलब ये सब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कल्चर लगा लेंगे जिससे कि हमको पता चल जाएगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है। नाउ दिस इज अ टेबल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। 3 दिन का रेजिमेंट चला सकते हैं कोट्रामेक्साजोल के साथ, और जिसमें कि हमारी चॉइस ऑफ ड्रग जो होगी, मतलब जो एक जो डोज होगा वो 160 होगा ट्राइमिथोप्रिम और 800 मिलीग्राम 12 आवरली। 7 डे के रेजिमेंट में आपको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन चलाना होता है 100 मिलीग्राम माइक्रोक्रिस्टलाइन, ठीक है, दिन में 4 बार, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लें तो इस कंडीशन में नोजिया वोमिटिंग जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। क्यूनोलोन्स जो हैं वो 14 डेज के लिए चलाते हैं, दे हैव अ वेरी गुड एफिकेसी। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अगर 1 ग्राम सिफाट्रॉक्सिन चला दिया तो दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल अगेंस्ट द व्हाट अनकॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेफ्राइटिस। नाउ अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा जेंटामाइसिन भी चलाते हैं लोग, और कभी कभी कॉम्बिनेशन में सिफेलोस्पोरिन के साथ हम ओरल क्यूनोलोन्स भी चला देते हैं विच 14 डेज के लिए, तो इसका बहुत इफेक्टिवली काम कर देता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की बात करें, नाउ इट इज़ हैविंग सम टाइप क्रिटिकल इन्फेक्शन, सो यहाँ पर हम एम्पिसिलिन चला देंगे, ठीक है। पेरेंटल रूट में क्यूनोलोन्स चला सकते हैं, सिफाट्रैक्सोन चला सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट माइक्रोब है तो वहाँ इमिपिनम और सिलेस्टेटिन का कॉम्बिनेशन भी चॉइस ऑफ ड्रग है। ओरल में क्यूनोलोन्स और कोट्रामेक्साजोल इज अ चॉइस ऑफ ड्रग। नाउ पोस्ट कॉइटल सिस्टाइटिस भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब जनरली ये इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है फीमेल्स में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारा जो ट्रीटमेंट है वहाँ पर हम 0.5% सेट्रिमाइड क्रीम जो है वो पेरीयूरेथ्रल स्पेस में लगा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हमको ये इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। प्रोस्टाइटिस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो चॉइस ऑफ ड्रग हो सकते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है ना, बहुत सारा कंडीशन है प्रोस्टाइटिस में। तो अब जिस तरह का सिम्टम हुआ, अगर आपको बोगी है, हल्का हल्का सा पेन है, सॉफ्टनेस है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, ई कोलाई की वजह से है या फिर दूसरे किसी पैथोजन की वजह से है, तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ ड्रग होगा दैट इज़ व्हाट फ्लोरोक्यूनोलोन्स, दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल। कैंडिडा की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, फंगस है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो
तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ ड्रग है दैट इज़ व्हाट, एक तो कैथरेटर को निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, और फिर 200 मिलीग्राम फ्लोकनाजोल दिन में एक बार, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए आपको चलाना पड़ेगा। पैरेलली एम्फोटेरिसिन बी का आईवी इंजेक्शन चलेगा, और आपको ब्लैडर इरिगेशन करना होगा एम्फोटेरिसिन बी का, ठीक है। एंड दिस इज द antimicrobial therapy for the pregnancy. So thank you for your patience listening.